عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہرگز اللہ کو جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، البتہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے اے لوگوں۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَإِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو اے مومنوں تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، صورتوں کو دیکھتا ہے، اسی طرح نہ تو تمہارے جانور کی شکلوں کو دیکھتا ہے نہ صورتوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے، کس جذبے سے عمل ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے مگر اس بات کی کہ اللہ کی عبادت کرے یکسو ہو کر، یعنی صرف اسی کے لیے اس کی عبادت کی جائے۔ حدیث پاک میں بے شمار احادیث ہیں، قرآن پاک میں بے شمار آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن میں جہاں ذکر کیا گیا قربانی کا، وہاں صاف لفظوں میں بتا دیا گیا، کوئی لگاؤ اور لپٹ کی بات نہ کہی گئی، صاف صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جانور کا گوشت ہو چاہے اس کا خون ہو، یہ نہیں پہنچے گا۔ پہنچے گا کیا؟ وہ کس جذبے سے وہ عبادت انجام دی جا رہی ہے۔ اور اللہ حکیم ہے، علیم ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا، وہ جانتا تھا انسان قربانی کرے گا اور نمود و نمائش کرے گا، صرف قربانی ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی عبادت میں وہ نمود اور ریا اور دکھاوے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے قربانی کے تعلق سے ایک دم واضح احکام کہ دل میں کیا ہے، اللہ کے ڈر سے کیا جا رہا ہے، گوشت کھانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا کسی اور مقصد سے کیا جا رہا ہے۔ اور یہی تک نہیں رکھا گیا بلکہ ہر طرح کی عبادت کا یہی معاملہ ہے، اور قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ اس کو اور تہواروں کی طرح، جس طرح اور تہواروں میں اچھے سے اچھا لباس دکھایا جاتا ہے اور ہم نے اتنے کا سوٹ پہنا اور اتنے کے لباس لیا اور اتنے کا جوتا اور اس کمپنی کا جوتا لیا، شو آف کیا جاتا ہے، اس طرح کا یہ تہوار نہیں ہے۔ یہاں یہ تہوار اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے جس دن قربانی کی آخری مثال پیش کی گئی، آخری مثال کہ 80-82 سال کی عمر تک اولاد نصیب نہ ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے 80-82 سال کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا تو وہ اولاد جو چلنے پھرنے کی عمر میں پہنچا تو اس کی قربانی اللہ نے مانگی۔ اور وہاں بھی کوئی بچے کی قربانی مقصود نہ تھی کہ بچے کو، اللہ تعالیٰ تو انسان کو پروان چڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے اور اپنا نائب بنایا ہے، وہ اپنے نائب کو خود اپنے نائب کے ہاتھوں سے کیوں قتل کروائے گا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت دنیا والوں کے سامنے آشکارا کرنا چاہتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے مسلمانوں، تم نے محبت اور محبت کو چھوڑنے والے بہت دیکھے ہوں، لیکن ایسی محبت کو قربان کرنے والا کہ بڑھاپے کے سہارے کو اپنے ہاتھ سے وہ ذبح کرے، یہ تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھ لو اللہ کے بندے کس حد تک میری محبت میں جاتے ہیں۔ اور قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مفصل ذکر کیا اور جگہ جگہ پر ذکر کیا، فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کے رب نے ان کو آزمایا، بکلمات، کچھ باتوں کے تعلق سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تمام باتوں کو انہیں مکمل کر کے دکھایا۔ جوانی میں جب انسان کو اپنی پرسنالٹی،
अपनी व्यक्तिगत अपनी इंफरादियत बहुत अजीज होती है, तो उन्होंने आग में कूद कर अपनी इंफरादियत की कुर्बानी, अपनी शख्सियत की कुर्बानी दी। जब इंसान बड़ा होता है तो अपने रिश्तेदारों का सपोर्ट चाहता है। ऐसे जमाने में बाप ने आपको घर से बाहर किया, वो अपने उस सपोर्ट की कुर्बानी। नमरूद ने आग में डाला, वो कुर्बानी। औलाद की नेमत मुद्दतों तक ना मिली और उस पर सब्र किए रहे, वो कुर्बानी। और आखिरी कुर्बानी बेटे को अल्लाह के लिए ज़बह करने की कुर्बानी को जब उन्होंने मुकम्मल कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम में कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, कि इब्राहिम हम आपको लोगों का पेशवा बनाते हैं, लोगों का इमाम बनाते हैं, लोगों का जो है मुक्तदा और लोगों का जो है फॉलो जिसको की जाए वो शख्सियत बना देते हैं, वो हस्ती बना देते हैं कि आपको हर इंसान अपना जो है इमाम और पेशवा मानेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झट से कहा, वमिन ज़ुर्रियती, कहे मेरे परवरदिगार मेरी नस्लों के साथ भी यही मामला रहेगा, क्या मेरी नस्ल को भी इमामत का हक हासिल होगा? क्या मेरी नस्ल के लोगों के जरिए फॉलो किए जाएंगे और उनकी इक्तदा की जाएगी, उनको इमाम दुनिया के लोग मानेंगे? तो कहा गया वमिन ज़ुर्रियती, तो कहा ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कि जालिम होंगे अगर आपकी उम्मत में से, आपकी औलाद में से और आपकी नस्ल में से अगर लोग जालिम पैदा होंगे तो उनको ये ओहदा हासिल नहीं होगा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सी बातें कुरान ने कहा। एक बात ये कहा कि कौन है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से नफरत करेगा, उनके कुर्बानी के तरीके से, उनके उम्मत की फिक्र के तरीके से, और अल्लाह के लिए सब कुछ निछावर कर देने का जो उनका तरीका था, कौन है जो उस तरीके से नफरत करेगा? कुरान ने कहा इल्ला मन सफिया नफ्सा, हाँ जो बेवकूफ है, जो अपनी हैसियत को नहीं पहचान रहा है, अपने बारे में नहीं जान रहा है कि वो कितना अजीम रिश्ता रखता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, वो ऐसी गलती करेगा। इब्राहिम तो वो है जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भी चुन लिया है अपने मुंतखब बंदों में, और आखिरत में तो वो बड़े मकाम वाले। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जज्बा और आने वाली नस्लों के ताल्लुक से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अल्लाह से कहना कि या अल्लाह मेरी नस्ल को भी ये चीज हासिल होगा। और उनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम का ये कहना कि मेरे बेटों मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? जवाब में बेटों का ये कहना कि अब्बा जान आपके रब की और आपके बुजुर्गों की रब की इबादत करेंगे और उन्हीं की पूजा करेंगे। ये सब बातें इस बात को बता रही हैं कि कुर्बानी जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उसी तरह नस्ले आइंदा नस्ल को ईमान पर रखने की फिक्र भी ये इब्राहिमी सुन्नत है। आइंदा हमारे आने वाली नस्लें दीन पर बाकी रहें, कुर्बानी का फलसफा उसको समझ में आए और दीन की बुनियादी चीजें उसके दिलो दिमाग में पेवस्त हो। ये नस्ल आइंदा नस्लों की फिक्र भी इसी तरह से करनी है जिस तरह से एहतमाम कुर्बानी का किया जाना है। अभी बहुत अच्छा मौका है कि बच्चों की हमारी 1 महीने की गर्मी की छुट्टी होने वाली है। हमारा वो बच्चा चाहे 9 में पढ़ रहा हो, 10 में पढ़ रहा हो, 11 में पढ़ रहा हो, 12 में पढ़ रहा हो, जिस शोबे में पढ़ रहा हो, जिस स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा हो, उसकी 1 महीने की समर क्लास, 1 महीने की दीनियात का कोर्स उसको किसी तरह से हासिल कराया जाए, प्रॉपर कराया जाए। बहुत सी शक्लें हैं, बहुत सी सुविधाएं, ऑनलाइन शक्लें हैं, ऑफलाइन शक्लें हैं। उसमें बताया जाए कि आपको जनाजे की नमाज की दुआएं याद हैं, जनाजे की नमाज का तरीका मालूम है, किस तरह से तकबीरें कही जाती हैं। अभी 50-60 किलोमीटर का एक वाकया आया सामने कि बारिश का जमाना था और चारों तरफ नदी नदी थी और मौलाना साहब नहीं थे
اور एक इंतकाल हो गया किसी शख्स का। वो 150 की आबादी में एक आदमी भी ऐसा नहीं था कि जनाजे की नमाज पढ़ा सके। एक चचा बड़ी हिम्मत करके खड़े हुए कि एक आदमी ने आगे किताब रखा और बड़ी हिम्मत करके वो खड़े हुए यूनुस चचा और कि हम देखते हैं पढ़ाने की, और थोड़ी देर खड़े हुए उसके बाद ना होतवा, अपनी भाषा में उन्होंने कहा कि हमसे ना होतवा, यानी हमसे नहीं हो पाएगा, देख कर भी नहीं हो पाएगा। लास्ट में मौलाना साहब से मसला पूछा क्या किया जाए। मौलाना साहब ने मसला कहा कि दीन आसान है, सिर्फ 4 तकबीरें कह दीजिए, कुछ मत पढ़िए, जनाजे की नमाज अदा हो जाएगी। ये समर वेकेशन जो आ रहा है, ये हमारी आइंदा नस्लों की फिक्र की जरूरत है। दीन की मोटी मोटी बातें और कुरान पाक का को नाजुक पढ़ना, और कुरान पाक अगर पढ़ना बच्चा जान रहा है तो कुछ उसके वो आयात जो कुरान में हम नमाज में पढ़ते हैं उसका तर्जुमा बच्चा सीख ले। ये इस बात की फिक्र इसी तरह की जानी है जिस तरह जानवरों के लिए फिक्र की जा रही है कि कौन सा जानवर लिया जाए, बड़ा लिया जाए, छोटा लिया जाए। बड़े पर बड़े मसाइल हैं, छोटे पर कोई मसला नहीं है। बहुत सारी एक दो बात नहीं है कौम मिल्लत में बोलने के लिए, कितनी बातें हैं जिसको कौन ठीक करेगा। नीट का पेपर हो कि बीपीएससी एग्जाम हो कि युवा बेरोजगारों को कॉकरोच बोलना हो कि देश के मुख्तलिफ मसाइल हो, किस मसले पे बात की जाए। जनगणना का जो मसला सामने आ रहा है, जो 2 चरणों में होना है, एक चरण तो अप्रैल से शुरू है, उसमें घरों की शनाख्त की जा रही है, घर घर की शनाख्त की जा रही है, लिस्टिंग की जा रही है घरों की, और घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, टीवी है, घर कितने फ्लोर का है, घर में संगमरमर है कि नहीं है, 33-34 किस्म के सवाल किए जा रहे हैं। एक मसला है ये डेटा डिजिटल जो है भी किया जाना है। मास्टरान हजरात घर पे आ रहे हैं, ये डिजिटल हमारा डेटा गोपनीय रखा जाएगा नहीं कि नहीं रखा जाएगा कि किसी अमेरिका वगैरह से बेच दिया जाएगा, जैसा कि इंटरनेट वगैरह की डेटा बेची जा रही है। डेटा की ताकत बहुत बड़ी ताकत आज बन चुकी है। वो कि मौला कमाल मस्जिद का मामला उठाया जाए, क्या उठाया जाए, किस चीज पर गुफ्तगू की जाए। मसला बस इतना सा है कि इस तमाम मसाइल का हल अगर किसी के पास माजी में इस मुल्क में बज़ाब्ता फिजिकल किसी के पास तारीख है कि इस मुल्क के तमाम मसले को किसी कौम ने हल किया है, तो वही एक कौम का नाम आता है जिसने ईमानदारी से, दयानतदारी से, पूरे इखलास के साथ, हुजूर की मोहब्बत के साथ, उम्मत की मोहब्बत के साथ, इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए जो कौम ने काम किया माजी में, पास्ट में, भूतकाल में, वो कौम एक ही है, मुस्लिम कौम। लेकिन उसका मामला यह है कि एक मस्जिद का इंतजाम तो सही से चल नहीं पा, एक मस्जिद का मामला उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो मुल्क, सूबा और स्टेट और रियासत की बात उसी वक्त की जा सकती है जब मस्जिद के इंतजाम को पहले बेहतर तरीके से चलाया जाए, स्कूल और मदारिस और मकातिब के इंतजाम को ईमानदाराना तरीके से चलाया जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की जाए, तब आगे की बात की जा सकती है। वाक़िअ